Hello, good morning, students. Welcome to e-learning. We are learning chapter 7, that is Indian Economy of Standard 11th. Now, we have completed two lectures and we have studied about the introduction as well as Indian economy before independence. In that, we have completed 5 points. There are 13 points altogether. If you have not watched that particular 5 points video, you just watch lecture 2 and then continue with the lecture 3. Now in lecture 3 we are going to learn again further 4 points of this. So it is a part 3 of Indian economy before independence. So we have completed railways, where we have seen that first railway was been set up by the Britishers in India, that is on 16th of April 1853 from Boribandar to Thane, first railway. And then after we find that till 19 it has became 1947 उन लोग ने 53,000 किलोमीटर्स तक के रेलवे लाइंस बना दिए. देन आफ्टर रोडवेज, अच्छे रोड्स उन लोग ने बनाए हमारे यहाँ पे, दैट इज बाय 1943 it was 4,47,105 kilometers of roads. In that again we find that 32 were the concrete roads, that is also known as Pakka roads, and 68% were the, we find that is Kacha roads. Then after bank, in that RBI became the apex bank in 1935, which was been established. Again before that, from 1770 to 1946 there were 700 private banks which was been established in India. Then after social structure, they abolished two different two wrong social practices of India, that is sati pratha and female infanticides. Okay, chalo. Then after fifth one, agriculture sector, where we find that Indian farmers were exploited because of this high revenue collection system, that is जमींदारी सिस्टम, रोटवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, जो आपको है नहीं लेकिन मैंने एडवांस में बता दिया, इसके अंदर सिर्फ जमींदारी सिस्टम है. देन आफ्टर उन लोग को इंडिगो पर्पसफुली ग्रो करना था, एंड इन दैट अगेन देयर वाज अ हाई टैक्स विच वॉज बीन गिवन अप. अगेन अ फार्मर्स, पूर फार्मर जिसके पास लैंड है लेकिन उन लोग के पास पैसे नहीं है, तो उन लोग को फॉर देम देयर वॉज loan which was been given to them for the crops to buy of indigo, and then after it was been we can say purposefully made them to grow. Again after that we find that this particular farmers were again exploited, and we find that they were been in the losses, and इसके वजह से हमारे यहाँ पे जो पुअर्टी के अंदर ये फार्मर्स आ गए बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रिटिशर्स rule of zamindari system, loan, as well as we find that purposefully growing the crops of indigo. Then today in our lecture we are going to learn about the land revenue. We are going to learn about the land revenue. Yes. Then after, high rates of taxes, high rate of excise and custom, and industrial policy, followed by the next lecture, that is economic exploitation of artisans and investment pattern, and lastly payment burdens. ये पूरे जो 4 पॉइंट्स है वो हम उसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, मतलब कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे. नाउ टुडे लैंड रेवेन्यूज. तो लैंड रेवेन्यूज कैसे होते थे? तो हमने प्रीवियसली देखा कि एग्रीकल्चर फार्मर्स के पास वो लोग हाई रेट ऑफ टैक्सेस लेते थे. तो यहाँ पे इन लोग ने राइट किसको दिया था? पहले तो जमींदार को दिया था. Who has given this right? That is the ruling party, that is East India Company, who has ruling us. In that they became उन लोग ने किंग्स को दे दिया था पहले. देन आफ्टर उन लोग ने ओनर्स की भाई वो लोग डायरेक्टली दे दिए. किंग्स की बात करें तो वो महलवारी सिस्टम में आ जाए, तो कि जो पर्टिकुलर विलेज है उसके अंदर जो किंग रहता है वो सब फार्मर्स के पास से वो टैक्स लेगा, एंड देन आफ्टर वो दैट किंग विल पे टू द ईस्ट इंडिया कंपनी. देन आफ्टर ओनर्स डायरेक्टली, फार्मिंग लैंड के जो ओनर्स है वो डायरेक्टली स्टेट में पैसा जमा करते वो कर दिया था. एंड लास्टली उन लोग जमींदारी सिस्टम लाए. तो जमींदारी सिस्टम के अंदर ये जो मिडलमैन जमींदारी था वो उसने ज़्यादा एक्सप्लोइट किया. उसने क्यों ज़्यादा एक्सप्लोइट किया? बिकॉज वो फार्मर्स के पास हाई रेवेन्यू लेता था. ऊपर वाले जो थे तो वो तो थोड़े बहुत लेते थे, लेकिन यहाँ पे जमींदार ने ज़्यादा एक्सप्लोइट किया. एंड उसके बाद अगर दे आर नॉट एबल टू फुलफिल, मतलब फार्मर वो रेवेन्यू टैक्स नहीं पे कर पा रहा था, तो उन लोग क्या करते थे? जानबूझ के इफ द रेवेन्यूज इज नॉट गिवन, दे ट्राई टू कॉन्फिस्केटिंग मीन्स वो लोग कब्जा कर लेते उन लोग की ज़मीन पे, एंड देन आफ्टर उसके ऊपर ज़्यादा हैवी चार्जेस लगा देते थे. एंड इसकी वजह से
कि फार्मर्स पैसे नहीं है, उसको उसके पास फाइन भरने के पैसे नहीं, उसके पास रेवेन्यू भरने के पैसे नहीं है, तो वो लोग जमींदार से ये पूरी जमीन हड़प लेते थे. So this is what the system that time where zamindars became so much rich under the Britishers because of this particular zamindari system. पहले जो किंग वाला था महल वाली सिस्टम, उसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद ये जो रॉट वाली सिस्टम था जिसके अंदर वो फार्मर्स डायरेक्टली पे करते उसके अंदर, लेकिन बाद में जब जमींदार को इंचार्ज बनाया ब्रिटिशर्स ने, दिस जमींदार हैव टोटली एक्सप्लॉइटेड, दे बिकेम द मिडल मैन बिटवीन दी we can say East India Company, that is the Britishers and the farmers, where तो फार्मर्स को पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया. कैसे कि हाई रेवेन्यू तो ले लिया, उसके बाद अगर वो पे नहीं कर पा रहे तो उसकी ज़मीन ले ली, अगर ज़मीन वापस ले देनी है तो उसके पास से हाई फाइन्स मांगते हैं. तो ये सब चीज़ों के अंदर आधी ज़मीन इन लोग ने ऐसे कैप्चर की, किसने, जमींदार्स ने फार्मर्स के पास से. सो वी फाइंड दैट लैंड रेवेन्यू वर एज हाई एज द हाफ ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स. यहाँ पे लैंड रेवेन्यू कितने थे, मैंने तो आगे लेक्चर में क्या बोला था कि 10 to 15% थे जो महलवारी एंड वो लोग पे करते, लेकिन जमींदार यहाँ पे कोई जमींदार तो पूरा 50% मांग लेते थे. तो दिस वाज द एक्सप्लॉइटेशन विच वाज बीन डन बाय हूम, डन बाय द जमींदार्स. देन आफ्टर हाई रेट ऑफ टैक्सेस, तो टैक्स के रेट्स क्यों बढ़ा दिए, क्यों हाई थे. सो यू फाइंड दैट अकॉर्डिंग टू दादाभाई नौरोजी, उन लोग ने कैलकुलेशन किया था. दादाभाई नौरोजी ने 1876 के टाइम के अंदर उन लोग ने कैलकुलेशन किया कि भाई कौन ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है, कौन ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है. तो उस टाइम के जो रिच पीपल्स थे वो लोग सिर्फ 8% ऑफ द टोटल इनकम दे आर प्लेइंग. तो उन लोग का जो टोटल इनकम होता था, जितने भी लैक्स हो या करोड़ हो, उसके अंदर वो लोग सिर्फ 8% टैक्स पे करते थे. और हमारे यहाँ पे पुअर पीपल 15% टैक्स पे करते थे. कितने, 15%. इफ यू नो द करंट टैक्स स्लैब ऑल्सो यू फाइंड दैट 2,50,000 तक कोई स्लैब नहीं, कोई पे नहीं करते. देन आफ्टर अगेन 5 लाख तक भी हमारे पास अभी प्रोविजन है कि हम टैक्स नहीं पे करना है. देन आफ्टर इफ यू गो टू 7.5 लाख 10 लाख, यू हैव टू पे सर्टन टैक्सेस, सर्टन रेट यू हैव टू पे. लेकिन यहाँ पे पुअर पीपल की इनकम होती है इतनी लैक्स में नहीं, तो उन लोग को 15% पे करना दे दिया था इनकम टैक्स. सो दिस बिकेम more exploitation towards our Indian farmers, Indian poor peoples, Indian laborers, every person who is not earning much, that is they are coming in the middle class or poor class of people, वो लोग को ज़्यादा टैक्स पर पे करना पड़ा. किसके टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे. किसकी वजह से, ये सब मिडल मैन, जमींदार एक्सेट्रा की वजह से. ठीक है. सो वी फाइंड दैट अकॉर्डिंग टू दादाभाई नौरोजी, ये भी आ सकता है कि हु डिड दिस कैलकुलेशन दैट रिच आर पेइंग लो टैक्सेस एंड पुअर आर पेइंग मोर टैक्सेस, दैट इज दादाभाई नौरोजी. इन विच ईयर, 1876. तो ये याद रखना है बिकॉज दिस इज ऑल द थिंग्स आर कम्स अंडर 1 मार्क्स MCQ. क्लियर. चलो, देन कम्स द 8th पॉइंट, दैट इज द हाई रेट ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स. हाई रेट ऑफ एक्साइज एंड कस्टम. नाउ excise and custom duties comes when we are importing or exporting, that is trading facilities or trading activities which is being done. So high rate of excise was collected on matches मतलब matchbox की बात कर रहे हैं, sugars, steel, silver and different commodities. तो ये सब चीज़ों पे ये लोग ज़्यादा एक्साइज लगाते थे. कौन लगाता था, ये लोग कौन, that is the Britishers. So Britishers used to charge so much on matches, sugar, steel, silver and different commodities which has been required. Again, हमारे यहाँ पे salt was free that time. Salt was everywhere and salt was very much free. It was negligible price. तो उन लोग ने ये सॉल्ट जो हम सी वाटर से निकालते थे, उन लोग ने ये क्या कर दिया, इलीगल प्रैक्टिस बना दिया. सो दे मेड देम इलीगल प्रैक्टिस. एंड अगेन यहाँ पे भरपूर सॉल्ट है, फिर भी what they did, they brought from Britain, they brought from Manchester, they brought this particular salt from their country to our country and make it to compulsory buy it. And हमारे यहाँ पर जो salt है वो उन लोग ने बैन कर दिया. So illegal practice करके उन लोग ने बैन कर दिया. So ultimately what happened, क्या हुआ, we find that this Britishers has a mindset to earn more and give more revenue, foreign revenue to their country. For that, what they did, they brought some of the products from their country and made it, though it is available in abundant.
हमारे यहाँ पे सॉल्ट अबंडेंट में अवेलेबल था, फिर भी उसको इलीगल प्रैक्टिस करके उन लोग को बैन कर दिया, और उन लोग की कंट्री से वो सॉल्ट यहाँ पे लाए, एंड देन आफ्टर दे मेड इट टू परचेज पर्पसफुली हमारे पास से परचेज करवाए। तो इसको रोकने के लिए वी फाइंड दैट गांधी जी स्टार्टेड अ डांडी मार्च, अ सत्याग्रह, वेयर दे स्टार्टेड अ डांडी मार्च फॉर प्रोटेस्टिंग दिस पर्टिकुलर इलीगल प्रैक्टिस ऑफ ब्रिटिशर्स, कि ये पर्पसफुली हम नहीं परचेज करेंगे इसके ऊपर, बिकॉज वी हैव आवर सी, वी हैव आवर ओन सॉल्ट मेकिंग पर्पसेस, एंड वो हमारे यहाँ पे फ्री है, तो वाई शुड वी परचेज फ्रॉम आउटसाइड पीपल्स, दैट टू इन हाई प्राइसेस। तो हाई ड्यूटीज वर इम्पोज। जब हम यहाँ से हमारा क्लोथ उन लोग की टेक्सटाइल के अंदर काम लगने में एज अ रॉ मटेरियल जा रहा है, तो वी शुड गेट बेनिफिट, लेकिन वो लोग उसके ऊपर हाई टैक्स हमारे पास से लेते। सो हाई ड्यूटीज इम्पोज ऑन कॉटन क्लोथ्स एक्सपोर्ट के ऊपर भी टैक्स हमारे पास लेते थे, एंड वो भी हाई रेट से, एंड 15%, दैट वाज कितना, 15% तक जाता था। एंड इंडियन कॉटन जो उन लोगों को रिसीव होता है वो ऐसे ऐसे ही रॉ मटेरियल की तरह मिल जाता है। तो क्योंकि वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ग्रो हुई थी, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज रेवोल्यूशन हो रहा था 17th सेंचुरी में। अगेन दूसरी बात करें कि मैनचेस्टर, ये ज़्यादातर क्लोथ कौन मंगाता था, मैनचेस्टर वाले मंगाते थे इन इंग्लैंड, एंड वी फाइंड दैट उन लोग को इंपोर्ट करने के लिए कितना टैक्स, 2.5%। कहाँ पे 15% जो हम एक्सपोर्ट करने के लिए बेचते, और कहाँ पे वो इंपोर्ट कराते उसका 2.5%। So we find that 6 times lesser import duties was being charged on our goods which are being exported to them। मतलब वो लोग जो इंपोर्ट कराते हैं उन लोग के पास को मैनचेस्टर वाले, तो उन लोग पे सिर्फ 2.5% टैक्स लगता है। तो ये कहाँ का इंसाफ है। तो दिस मेड वॉट कि एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी के अंदर भी इन लोग ने बहुत सारी मगजमारी की, बहुत सारे लूप होल्स है। यू फाइंड दैट दे मेड पार्शलिटीज एंड दे मेड देयर बेनिफिट। उन लोग ने अपना बेनिफिट बनाने के लिए हमारे यहाँ से कॉटन क्लोथ्स, हमारे यहाँ से कॉटन, इंडिगो, मुस्लिन, लेनिन का जो क्लोथ आता है स्पेशल बनता है, खादी टाइप, एवरीथिंग वाज बीन टेकन अप फ्रॉम अस टू देयर कंट्री। सम ऑफ द आर्टिक्राफ्ट्स वो भी लेके गए। सो ऑल दिस वी कैन से कि इन लोग ने क्या कर दिया, पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया। अगेन एक और चीज़ है, they in the sense the Britishers, they made some of their local goods to be imported from there, मतलब हमारे लिए इंपोर्टेड, इंडिया के अंदर इंपोर्ट करवाया फ्रॉम मैनचेस्टर, वेयर उन लोग ने वो ज़बरदस्ती सेल किया और ज़बरदस्ती हमारे पास से परचेज करवाया, क्योंकि उनकी फॉरेन करेंसी में ज़्यादा नाम बोले, उन लोग की इनकम रेवेन्यू ज़्यादा हो, किसकी, इंग्लैंड की। सो दिस वॉज ऑल विच वेयर मेड कंपल्सरी। एंड हमारे यहाँ पे जो हमारे पूर्व हैंडीक्राफ्ट पॉटरी मेकर्स जो पॉटर्स थे वो सब लोग, उन लोग का नुकसान हो गया, उन लोग के साथ कंपटीशन में ये लोग आए और ज़बरदस्ती उन लोग का ही गुड्स परचेज करने, तो पैसे बचते नहीं थे, बिकॉज अगेन उन लोग को पैसे ज़्यादा मिलते नहीं थे। तो ये सब चीज़ द प्रॉब्लम विच वॉज गोइंग ऑन दैट टाइम। अगेन लास्टली कंक्लूजन में, इंडियन रॉ मटेरियल वर एक्सप्लॉइटेड टू द ब्रिटिशर्स इंडस्ट्री कुड थ्राइव एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। मतलब वो लोग क्या कर रहे थे, हमारा क्लोथ लेके वहाँ पे प्रोड्यूस करके वहाँ से यहाँ तक लाते, मतलब वहाँ से एक्सपोर्ट हमारे लिए इंपोर्ट, एंड इसके बाद ज़बरदस्ती वही क्लोथ हमको पैसे, मतलब इन शॉर्ट एक सिंपल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस एक अमाउंट देके मैं समझाता हूँ कि भाई हमारे यहाँ से 300 का क्लोथ जाता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है वगैरह सब कुछ, उसके बाद उन लोगों को सपोज 350 में गिरा वो पर्टिकुलर 1 मीटर ऑफ क्लोथ, दे मेक देयर पैंट्स everything, different t-shirts, everything, and they bring here with their branding that is made in Manchester, made in England, everything, and यहाँ पे they try to sell, if you don't believe it is more than 1500। so 350 का जो गुड्स उन लोग को रॉ मटेरियल मिलता है और वही चीज़ प्रोडक्ट बन के हमारे यहाँ पे ब्रांडिंग के नाम पे वो लोग 2000 1500 पे बेचते हैं। So this is what the thing, still today it is still going on. We don't find a good quality of cloth, a very good quality of cloth is been used in India, it is been sell in India, it is all exported to the outside country। so ये चीज़ हो रहा है यहाँ पे। okay, so this is what happened during that time। now moving towards the last point for today's lecture, that is
industrial policy. Now, what was the industrial policy? How did the industrial policy came? The industrial revolution कब चालू हुआ था? 17th century में. The period of 1750 to 1830 was a period of इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो 1750 से लेकर 1830 80 ईयर्स का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई. तो हमने देखा रेलवे, रोडवेज वगैरह बनाए, लेकिन यहाँ पे हमको इन्वेस्ट नहीं करने दिया, इंडियन को इन्वेस्ट करने दिया नहीं. सो व्हाट दे डिड, दे मेड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स फॉर देयर ओन बेनिफिट. जैसे उन लोग ने हैवी इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, सिविल इंजीनियर्स बनाए, ये सब चीज़ें बनाई. सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो डिफरेंट मटेरियल्स चाहिए वो बनाए, की इंडस्ट्रीज बनाई, बेसिक इंडस्ट्रीज उसको बोलते हैं. तो सीमेंट की बनाओ, केमिकल्स की बनाओ, देन आफ्टर डिफरेंट हैवी मशीनरीज की बनाओ. तो ये सारी मशीनरीज की प्रोडक्शन यहाँ पे बनाया, लेकिन वो उसके अंदर किसी भी इंडियन को इन्वेस्ट करने दिया नहीं. लेकिन हमारे यहाँ से ही रॉ मटेरियल यूज होके वो पूरा चीज़ जाता था ब्रिटेन, और वही गुड्स आके हमको ही सेल करते थे. तो ये चीज़ हो रहा था हमारे साथ उस टाइम पे. सो इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑल्सो व्हाट हैपेंड बेसिकली इज द की पॉइंट इज दैट दे यूज इंडियन प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स, Indian people to run different machineries to produce different machineries, and lastly those produced goods are sold in India only, made purposefully purchased in India only by the Britain people. उन लोग का प्रोडक्शन वहाँ पे हुआ, वो यहाँ पे लाते थे, और वही यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से उन लोग को ही बेचते ये चीज़ कर दिया. तो दिस इज़ व्हाट वी फाइंड दैट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर हमारा ही गुड्स, हमारे ही मशीनरीज, हमारे लोगों के मशीनरीज से पास बनवाते हुए एवरीथिंग वॉज बिन देयर. फिर भी इट वॉज मेड, प्रोडक्शन इज बीन डन इन ब्रिटेन एंड अगेन ब्रॉट इन हियर. तो रॉ मटेरियल तो हमारे ही है, और हमको ही उल्लू बनाते मीन्स उल्लू बना के बेच रहे थे. सो दिस इज वॉट विच वॉज बिन हैपनिंग अप फोर्सफुली अंडर देयर रूल. नाउ टुडे वी हैव completed 6 to 9 points, 6, 7, 8, 9. Next 10 to 13 points will complete in our next lecture. I hope you have understood well. If you still find any doubt, any queries, you can just call or message me on my number. Till then, you have to write the notes. Okay, keep writing, keep learning, keep revising the previous lectures. Thank you.